وہ 1925 میں پیدا ہوا۔ 6 سال کی عمر میں ولی عہد بنا اور 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ وہ محمد رضا شاہ پہلوی تھا، لیکن پوری دنیا اسے شاہ ایران کے نام سے جانتی تھی۔ وہ ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا دوست تھا۔ یورپی پریس اسے امریکن گورنر کہتا تھا، یعنی وہ خود بادشاہ تھا لیکن اسے یورپی امریکن گورنر کہتے تھے کہ ایشیا میں وہ امریکہ کا گورنر ہے۔ وہ امریکی وفاداری میں بہت آگے چلا گیا۔ امریکہ نے اسے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا حکم دیا اور اس نے ایران میں داڑھی اور پردے پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تھی تو پولیس سر عام اس کا برقع پھاڑ دیتی تھی۔ شاہ ایران نے تمام زنانہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسکرٹ کو یونیفارم بنا دیا اور حکم دیا کہ رانوں تک جو ٹانگیں ہوں گی وہ ننگی ہوں گی۔ شراب نوشی، رقص اور زنا فیشن بن گیا اور یہ تہران کے روڈوں پر روزانہ لوگ نظارے دیکھتے۔ شاہ کے دور میں ایران دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کالجوں میں شراب کی دکانیں تھیں، یونیورسٹیوں میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ شاہ کے زمانے میں 2 جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کی۔ 2 جرنیل تھے، ان کے بیٹے گے تھے۔ ان کی سرکاری طور پہ شادی ہوئی 2 لڑکوں کی۔ سرکاری سطح پر نہ صرف ان کی دعوت ولیمہ ہوئی محل میں، بلکہ شاہ اور اس کی پوری کابینہ نے خصوصی طور پر اس گے شادی میں شرکت کی۔ شاہ نے امریکہ کی محبت میں ایران میں موجود 42,000 امریکیوں کو سفارتی حیثیت دے دی اور ان کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا۔ امریکہ نے شاہ ایران کے دفتر میں گرین فون لگا رکھا تھا اور اسے امریکہ سے ہر گھنٹے بعد جو ہدایات ملتی تھی وہ ان پر فوری عمل درآمد کراتا تھا۔ لیکن پھر شاہ کی امریکہ نواز پالیسیوں پر بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوت 3 سال تک چلتی رہی۔ شاہ نے 12 شہروں میں مارشل لاء لگا دیا۔ عوام نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے حکومت شاہپور بختیار کے حوالے کی اور ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا امریکہ اب اس کی وفاداریوں کا بدلہ دے گا، لیکن جو ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کی حدود سے نکلا، امریکہ نے آنکھیں پھیر لیں۔ شاہ پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس اور پھر میکسیکو۔ وہ اس دوران امریکہ سے مسلسل مدد مانگتا رہا، لیکن وائٹ ہاؤس اس کا ٹیلی فون تک نہیں سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.25 سال تک مارا پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اسی دوران اسے کینسر ہو گیا۔ امریکہ نے اس کے تمام اکاؤنٹس سیز کر دیے جن میں اربوں ڈالرز پڑے تھے۔ آخر میں انور سادات کام آیا اور اس نے اسے پناہ دے دی۔ جولائی 1980 میں قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد اس کے پاس اس کی تیسری بیوی کے سوا کوئی نہ تھا۔ لوگ اس کا جنازہ تک پڑھنے نہ آئے، چنانچہ اسے اس کے بیڈ روم ہی میں امانتاً دفنا دیا گیا اور انور سادات نے یہ بندوبست کیا کہ اس کی قبر پر پہرا لگا دیا تاکہ کوئی اس کی لاش نکال کر اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ صرف رضا شاہ پہلوی کی کہانی نہیں، امریکہ کا ہر دوست، ہر حکمران
इसी अंजाम का शिकार हुआ। आप अन्नास तासीसियो की मिसाल लीजिए। वो निकारागुआ में अमेरिकी एजेंट था। निकारागुआ में कम्युनिज्म की तहरीक शुरू हुई तो अमेरिका ने तासीसियो को डॉलर और असला देकर कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा कर दिया। तासीसियो अमेरिका की जंग को अपनी जंग समझकर लड़ता रहा। ये पॉइंट है, ये हमारी जंग है, ये मेरी जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है, ये निकारागुआ की जंग है, ये पॉइंट है। 1979 में निकारागुआ में उसके लिए हालात मुश्किल हो गए। तासीसियो के लिए वो मुल्क से फरार हुआ, लेकिन जो ही उसने निकारागुआ से बाहर कदम रखा, अमेरिका ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसने अमेरिका आने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने उसे इजाजत ना दी। यूं तासीसियो जंगलों और गारों में छुपकर जिंदगी गुजारने लगा। वो 1980 में इसी परेशानी के आलम में इंतकाल कर गया और उसके चंद करीबी दोस्तों ने उसे पैराग्वे में दफन कर दिया। आज लोग उसके नाम तक से वाकिफ नहीं है। ये वो तासीसियो है जो डायरेक्ट व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में फोन करता था, आज कोई नहीं जानता। चिली के आमिर जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने इक्तदार में आते ही चिली के अवाम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। 1973 में CIA की मदद से सदर ओलिंदे की हुकूमत पर शब खून मारा। पिनोशे 1990 तक चिली का हुक्मरान रहा। इन 17 बरसों में जनरल पिनोशे ने अमेरिका के कहने पर हजारों शहरी कत्ल कराए, अमेरिका की नापसंदीदा तंजीमों पर पाबंदियां लगाईं, तहरीक लब्बैक, PTI और अमेरिका की ख्वाहिश पर अपने शहरियों के इंसानी हकूक गस्ब किए। 1990 में पिनोशे के खिलाफ उठ खड़े हुए। वो मार्च 1990 में लंदन फरार हो गया। उसका ख्याल था बरतानिया और अमेरिका उसकी वफादारियों की कदर करेंगे, लेकिन लंदन आते ही बरतानवी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे उसके घर में नजरबंद कर दिया। उसने इस नारवा सलूक पर अमेरिका से एहतजाज किया, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने उसे जवाब तक देने की जहमत न की। बरतानवी हुकूमत ने उसे 2000 में गिरफ्तार करके चिली के हवाले कर दिया। उसके खिलाफ मुकदमा चला। 3 दिसंबर 2006 को उसे हार्ट अटैक और फालिज हुआ और वो दम तोड़ गया। उसकी मौत पर पूरे मुल्क चिली में खुशियां मनाई गईं, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने एक सत्र का ताज़ियती पैगाम तक जारी न किया। अंगोला का बागी सरदार अंगोला का बागी सरदार जोनास स्योमनी भी अमेरिकी नवाज लीडर था। वो बरसा बरस अंगोला में अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा। नवंबर 1992 में अमेरिका ने उसे कम्युनिस्टों के साथ अमन मुआहदे का हुक्म दिया। उसने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके नतीजे में स्योमनी बेदस्तोपा हो गया। मुआहदे पर दस्तखतों के 2 माह बाद कम्युनिस्टों ने हाम्बू में उसके हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। वो फरार हो गया। आज इस वाक़े को 15 साल गुजर चुके हैं। स्योमनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत उसका टेलीफोन तक नहीं उठाती। जनरल नोरेगा पानामा में अमेरिका का आलाकार था। उसे भी अमेरिकियों ने कम्युनिस्टों के खिलाफ इस्तेमाल किया। वो 1990 तक अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा, लेकिन अमेरिका की तसल्ली न हुई। लिहाजा अमेरिका ने
پیناما پر حملہ کر دیا۔ صدر نوریگا گرفتار ہوا۔ امریکی ایما پر عدالت نے اسے 40 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی اور نوریگا گزشتہ 14 برس سے جیل میں امریکی دوستی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ فرڈیننڈ مارکوس 22 برس تک فلپائن میں امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا۔ اس نے فلپائن سے کمیونسٹوں کو چن چن کر ختم کر دیا، لیکن 1986 میں امریکہ ہی نے اس کی حکومت ختم کرا دی۔ مارکوس امریکہ آ گیا۔ امریکہ نے اسے پناہ تو دے دی، لیکن اسے وہ عزت اور وہ توقیر نہ دی جس کا وہ حقدار تھا۔ مارکوس نے باقی زندگی ہونولولو کے ایک چھوٹے سے مکان میں گزاری اور اسے ایک عام مہاجر کے برابر وظیفہ ملتا تھا۔ مارکوس 1999 میں اسی بے بسی اور انتہائی بری حالت کے عالم میں مر گیا۔ 1979 ہی میں امریکہ نے روڈوشیا میں بشپ ایبل کو مغابے اور نکوموں کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ بشپ امریکیوں کے لیے لڑتا رہا، لیکن جب وہ لڑتے لڑتے کمزور ہو گیا تو امریکہ نے اس کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور صدر صدام حسین کی کہانی تو پوری دنیا جانتی ہے۔ انقلاب ایران کے بعد امریکہ نے صدام حسین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدام حسین نے امریکہ کے ایما پر 22 ستمبر 1980 کو ایران پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 20 اگست 1988 تک 8 سال جاری رہی اور اس میں 10 لاکھ افراد ہلاک اور 20 لاکھ زخمی ہوئے۔ صدام حسین 1990 تک امریکہ کا دوست رہا، لیکن پھر امریکہ نے تیل کے لالچ میں عراق پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں 86,000 عراقی شہید ہوئے۔ 2003 میں امریکہ نے ایک بار پھر عراق پر حملہ کیا۔ صدام حسین گرفتار ہوا اور امریکی ہدایات پر اسے 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ والے دن بغداد میں پھانسی دے دی گئی۔ شاعران سے لے کر صدام حسین تک امریکی تاریخ دوست کشی کی ہزاروں مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ امریکی اپنی خارجہ پالیسی کو ڈسپوزیبل یا ڈسپوزل ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ ان کا فلسفہ ہے خریدو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ امریکی قوم بلیڈ کھنڈا ہونے سے پہلے بیوی بدل لیتے ہیں۔ ان کا بلیڈ اتنی جلدی کھنڈا نہیں ہوتا، کند نہیں ہوتا شے والا، جتنی جلدی میں وہ بیوی بدل لیتے ہیں۔ جی، چنانچہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو کاغذ کے گلاس، پلیٹ، ٹشو اور گندی جراب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ لوگ ہمیشہ کیس ٹو کیس اور پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ چلتے ہیں۔ چنانچہ ان کے دوست جنرل پنوشے ہوں، رضا شاہ پہلوی ہوں یا جنرل صدام حسین ہوں، جنرل ضیاء الحق ہوں، جنرل پرویز مشرف ہوں، یہ لوگ اس وقت انہیں دوست سمجھتے ہیں جب تک وہ ان کے لیے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، اور جس دن انہیں محسوس ہوتا ہے یہ شخص ان کی لائبلٹی بنتا جا رہا ہے، بوجھ بنتا جا رہا ہے، غیر ضروری تقاضے کرتا ہے، ہر وقت فون کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق جیسا سلوک کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کی قبروں تک پر سابق ایکس کی مور لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے امریکی دوستی اور اس کا انجام۔ اور امریکہ پچھلے سینکڑوں برس سے دوستی کے اسی فلسفے پر کاربند ہے، اور اس نے آج تک کسی شخص کے لیے اپنی یہ پالیسی نہیں بدلی۔ لیکن ہمارے مہربان
ये समझ रहे हैं कि आज तक या 2026 तक पहुंचकर अमेरिका ने सारा फलसफा बदल लिया है और वो अब बहरे अरब के आखिरी साहिल और बहरे ओकेनूस की आखिरी लहर तक हमारा साथ देगा। हमारे ये दोस्त भूल गए हैं, खासकर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ये भूल गए हैं, वो अमरीकी जो अपनी मां बाप तक को भूल जाते हैं कि उनकी मां कौन थी और उनका बाप कौन था, वो बहरानों में इनका क्या साथ देंगे। अमेरिका डूबते सूरजों की जमीन है और डूबते सूरजों के बेटे हमेशा चढ़ते सूरजों के दोस्त होते हैं और इस वक्त हमारे मेहरबानों का सूरज डूब रहा है। चुनाचे अमेरिका की वफादारी का रुख भी बदल रहा है। बस 1-2 हफ्तों की बात है और इसके बाद नया कप, नई प्लेट और नया गिलास होगा। ये है टोटल अमेरिका की खारजा पॉलिसी और ये एक खामोश पैगाम है जनरल आसिम मुनीर को, जो 5 स्टार जनरल होकर अमेरिका से पैगाम लेते हैं और इतने भारी भरकम वफ्द के साथ वो पहुंच जाते हैं ईरान और ईरान के वजीर खारजा को वो पैगाम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 16 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है जुमरात का। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जुमरात वाले दिन खासकर अपने मरहूमीन को याद कर लिया करें, उनके लिए इजी लोड भेज दिया करें और इजी लोड जो है वो दुआओं की सूरत में कोई आयत पढ़ के या दुरूद इब्राहिमी पढ़ के। हमेशा से जो मेरी कोशिश रही है ना, मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो कंटेंट हो ना वो एवरग्रीन हो। ये कहानी जब भी आप सुने, जब भी साल बाद सुने, 2 साल बाद सुने, कंटेंट एवरग्रीन होना चाहिए। अब इसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। शहबाज शरीफ की दौड़ें, शहबाज शरीफ सऊदीया पहुंच गया, इसके बाद फील्ड मार्शल जो है वो ईरान पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अमेरिका को इस वक्त जरूरत है, अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, अमेरिका को ट्रॉफी चाहिए। पाकिस्तान ईरान को किस बात पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है? वो इस बात पर कि अमेरिकी कहते हैं कि 10 साल तक ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। ईरान कहता है ये पाबंदी 5 साल की होनी चाहिए, हम 5 साल एटम बम नहीं बनाएंगे। अब यहां पे किरदार शुरू होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तानी ईरानियों को कह रहे हैं कि आप 9 साल कर लें, 8 साल कर लें, 7 साल कर लें, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है जो मैं हमेशा करता हूं, इस बंदर की सारी भाग दौड़ में, यानी बंदर एक दिन जंगल का सरदार बन गया और जंगल पे मुसीबत आ गई, जानवर सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत कुछ करें। तो बंदर एक दरख्त से लटक कर दूसरे दरख्त पर, दूसरे दरख्त से लटक कर तीसरे दरख्त पर, वो इस तरह करता रहा। काफी देर बाद जानवरों ने कहा कि बादशाह सलामत ये आप क्या कर रहे हैं? तो बंदर ने जवाब दिया कि मैं भाग दौड़ कर रहा हूं। शहबाज शरीफ को कौन जानता है? जनरल आसिम मुनीर को कौन जानता है? ये भाग दौड़ है अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए। इस सारी भाग दौड़ का पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को पता है क्या फायदा हुआ है? पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात ने बांह चाड़ी कि हमारे पैसे वापस करो, $3 अरब। ये सऊदीज के पास पहुंच गए। सऊदीज ने कहा कि ये लोग जिस तरह वो जुवारी होते हैं, यानी बाज औकात लोग अपनी बेटियां हार देते हैं, ये वाकयात मौजूद हैं। लोग अपने मकानात हार देते हैं, बाग हार देते हैं, गाड़ी हार देते हैं जुए में, जो बड़े लेवल का जुआ होता है।
सऊदीज ने कहा कि ये लो और फौज भेजो और फौज को तैनात करो दहरान में, ईरान के सामने। कहां पे हरमैन शरीफैन और कहां दहरान, इन्होंने मिंट मारा। ऐन मुज़ाकरात के दरमियान सऊदीया ने खबर दी कि पाकिस्तानी फौज वो किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पे पहुंच गई है, त्यारे भी पहुंच गए हैं। $5 अरब, टोटल कीमत $5 अरब लगी। इस सारी नस भाज में पाकिस्तान का क्या फायदा है? पाकिस्तान का फायदा यह है कि 24 घंटों में रावलपिंडी की बात कर रहा हूं, मुजाफात की बात नहीं कर रहा, 24 घंटों में तकरीबन 12 से 13 घंटे बिजली बंद है। 12 से 13 घंटे। रात को गली में जिस तरह बच्चों के रोने की आवाजें आती है ना, गर्मी और मच्छरों से, वो बर्दाश्त नहीं होती। ये पाकिस्तान की पोजीशन है। अब कह रहे हैं कि अगला दौर भी पाकिस्तान में होगा और फिर पाकिस्तान बंद कर दिया जाएगा। अगला दौर पाकिस्तान में हो, मैंने कल भी कहा था, मुआहदा हो गया, जंग बंद हो गई, ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया, या अमेरिका जीत गया, ईरान हार गया, सारा कुछ। इसमें हम कहां पे खड़े हैं? हम ये तो जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं ना, और करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, और सहाफी वो खाबे मार रहे हैं जान में, हरामखोर रोटी वाली मशीनें, उसका बिल भी शायद बिजली के बिलों में ये भेज दें, बिजली के बिलों में, कि कौम ये भी पे करे। हमने मुज़ाकरात करवाए थे अमेरिका और ईरान के। मुझे सिर्फ एक बात आप बताएं कि जब ईरान की जंग नहीं हो रही थी, अमेरिका ने हमला नहीं किया था, यहां पे पेट्रोल सस्ता था, डीजल सस्ता था, क्या था? जंग से पहले पाकिस्तान को क्या था? 100 रुपए पहले भी ये ले रहे थे पेट्रोल और डीजल पे, अब बढ़ा दी है। लोगों की जिंदगी जीरन है। इमरान खान पे पहले भी जुल्म हो रहा था, अब भी जुल्म हो रहा है, और जुल्म करने वाले जनरल आसिम मुनीर हैं। और जनरल आसिम मुनीर को खुली छुट्टी क्यों दी गई है? यही भाग दौड़। एक 22वें ग्रेड का सरकारी अफसर, यानी मैं तो हैरान होता हूं, या मेरी ख्वाहिश है कि कभी चेयरमैन वापडा भी शुरू कर दे। अभी फील्ड मार्शल गए हुए ना ईरान, तो चेयरमैन वापडा जो है वो भी जनरल होगा, मेरा ख्याल है रिटायर्ड जनरल होगा, वो इटली निकल जाए कि मैं भी करवाता हूं। जो वासा का चेयरमैन है, जो नालियां पानी साफ करता है, वो निकल जाए इंग्लैंड के मैं भी सालसी करवाता हूं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, वो निकल जाए यानी दुबई कि मैं भी सालसी कराता हूं। वो भी इदारों को सरबराह है ना, वो भी इदारों को सरबराह है, वो भी निकल जाए, सारे निकल जाए इधर उधर के, हम सालसियां करा रहे, हम भाग दौड़ कर रहे। ये अमेरिका है, अमेरिका। अभी लाइसेंस टू किल है जनरल आसिम मुनीर के पास और उनके टोले के पास, लाइसेंस टू किल। वरना इतना बड़ा लीडर जिसने 2/3 अक्सरियत ली 2024 में, वो जेल में सड़ रहा है। उसकी आंख खराब हो गई है, उसकी बीवी की आंख खराब हो गई है। रात को फिर टीम गई है चोरी छुपे अडयाला में। अब जुल्म का अंदाजा करें, जुल्म का। और खुदा न खास्ता वो आंख में बनने वाला क्लॉट, वो ये कह देंगे कि दिमाग की तरफ जाते हुए रग में बन गया था, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हेमरेज हो गया, फिर क्या होगा? पीटीआई का हाल आपके सामने है। सिवाय इमरान खान की बहनों पे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो किसी पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी बात ठीक है। अब सुहेल आफरीदी को देखें ना, सुहेल आफरीदी ने आते ही क्या किया, यानी हर तरफ सुहेल आफरीदी। इमरान खान के बाद अगर किसी को प्यार मिला तो वो सुहेल आफरीदी थे। अब प्यार क्यों मिला, सवाल ये है, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया था कि मैं इश्के इमरान में मारा जाऊंगा, तो मरो, मरो ना।
तमाम जो वोट मिले थे 8 फरवरी 2024 को, वो मिले थे इमरान को आजाद करवाने के लिए, इमरान को बाहर निकालने के लिए। और ये क्या समझ बैठे सूबा चलवाना है, वो तो खुद कर लेते हैं। केपीके वाले अपनी मजदूरी कर लेते हैं, कोई तंदूर लगाता है, कोई जूते पॉलिश करता है, कोई नौकरी करता है, कोई रेडी लगा, वो अपनी रोजी कर लेते हैं। वो सूबा चल रहा है और इन सूबों से बेहतर चल रहा है, इन सूबों से बेहतर चल रहा है, वो चल रहा है। उसमें सुहेल आफरीदी हो, गंडापुर हो, मैं हूं, वो चल रहा है वो। तो सुहेल आफरीदी में क्या, सुहेल आफरीदी ने लंदन से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली हुई है कि सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाया? वो अब सूबा चलाने पे कि जी मैं सूबा चला रहा हूं और मुझे हुक्म मिला है कि जलसा किया जाए। इस हुक्म पे बड़ा जलसे में क्या होगा, जलसे में लाख लोग आ जाएगा। अव्वल तो मेरा ख्याल है कि लोग बददिल हो गए हैं, या 1 लाख लोग आ जाएगा, फिर क्या होगा जलसे से? तकरीरें होंगी, टरे होंगे, टरे। टरे मैंने आपको बताया था, हमारी जुबान में बड़ा जबरदस्त लफ्ज है टरा, जो बहुत बड़ा झूठ हो ना, बहुत बड़ा झूठ, तो हम टरा कहते हैं। वहां टरे मारेंगे, वो जो है जुनेद अकबर वो टरे मारेगा, सुहेल आफरीदी टरे मारेगा, उसके बाद हर कोई घरों में बस, और अपने एसी कमरों में। यानी मैं बार बार एक सवाल करता हूं कि इमरान खान अंदर है, ये क्यों बाहर हैं? ये मिले हुए हैं फौज से, जर्नैलों से, स्वीट बॉय हैं, गुड बॉय हैं, मिले हुए हैं। वरना आज केपीके बंद करे, आज केपीके बंद करे, आज सारी पुलिस को सूबे से निकाल दे, सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहे कि 24 घंटे में छोड़ दो केपीके, नायल हो जाए। तलवार लटकाई हुई है, वो भी बड़े सियाने हैं, तलवार लटकाई हुई है इलेक्शन कमीशन में, नाअहली की, हो जाए नायल। वो एल के तरह जो नायल होगा, हो जाए, हो जाए। वो एक इंडियन मूवी में एक लीडर जो है, मजदूर लीडर, वो उनको हड़ताल करने का कहता है एक सेठ के खिलाफ या जालिम के खिलाफ, तो मजदूर कहते हैं कि वो हमें मार देगा, तो लीडर कहता है मर जाओ, मर जाओ, अगर मार देगा तो। सुहेल आफरीदी मर जाए, बैरिस्टर गौहर मर जाए, लोग इनको याद करेंगे। जिस तरह वो 19 साल का अनीस सती डी चौक में, वो एक कहां डेरा गादी खान, कहां आप इश्क का अंदाजा करें, कहां डीजी खान और कहां पे डी चौक, वो एक डेरा गादी खान से आकर डी चौक में शहीद हो गया। अंदाजा करें। 70 साल का एक बाबा, 70 साल का, वो मियां वाली से मोटरसाइकिल पे आया, मियां वाली से, और कहां गया? पेशावर, जलसे में। वापसी पर रात थी, बुजुर्ग थे, ट्रेले के साथ उस बुजुर्ग का एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गया, सफेद दाढ़ी वाला। इसको इश्क इमरान कहते हैं, इसको नजरिया कहते हैं। टरे मारना, टरे, आगे पीछे प्रोटोकॉल, आगे पीछे। तो सुहेल आफरीदी भी बिल्कुल तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। और जो इस सिस्टम को पैगाम है ना, खबरें तो आप सुन रहे हैं, ये मैंने भी आपको बता दी, एक डाकिया भाग दौड़ हो रही है इस दराग से उस दराग से। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान को एक ऐसी नहूसत ने लपेट में ले रखा है, एक ऐसी नहूसत जहां पे तारी है कि कोई काम, कोई बिजनेस, कोई कारोबार, महंगाई, बेरोजगारी, तौनसा में एक सिरिंज 10-10 बच्चों को लगाई गई, 10-10 बच्चों को एक सिरिंज, और 321 बच्चों को एड्स हो गया। यहां पे ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल। जनरल आसिम मुनीर तेहरान में सीढ़ियां उतर रहे हैं, ब्रांड न्यू जहाज, बिल्कुल पप्पू जहाज। जहाज को आप देखें, आपको लुत्फ आ जाए।
जाते तो इस तरह है ना कि वायसराय हैं दुनिया के। जब वो सीढ़ियां उतर रहे हैं तो एक इतना सीनियर अफसर वो तस्वीरें बना रहा है, क्लिच 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 तस्वीर है। इनकी जो जिंदगी का हासिल और हसूल है ना, वो तस्वीरें हैं, और कोई इनका हासिल हसूल नहीं है। फिर वहां पे गले मिले। अच्छा, कुछ दिन पहले क्या कहा जा रहा था, जिनको ईरान पसंद है ईरान चले जाएं। याद है, याद है गब्बर सिंह ने ठाकुर को कहा था, याद है, जिनको ईरान पसंद है ईरान चले जाएं। शिया उलमा को डांट पिलाई गई। फिर अबू जी, बेटे जी अबू जी ने कान से पकड़ के कि चलो तेहरान, चलो बेटे जी अबू जी, चलो तेहरान पहुंच गए। लेकिन ये मैंने सारी मिसालें पनोशे, शायरान, म्यूसनी, सद्दाम हुसैन, जिया, मुशर्रफ, बाजवा, हत्ता के बाजवा रजीम चेंज करवा लिया बाजवा से, फिर उसे कहा कि जाओ मरो कमोड में। नदीम अंजुम, सारे इसी तरह ही है, इसी तरह। इंशाल्लाह आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। जनरल आसिम मुनीर को आप देख लेंगे। पहले तो ये मामला सेटल हो जाए ना, अमेरिका गर्दन तक धंस चुका है, चीन खिलाफ, रशिया खिलाफ, यूरोप खिलाफ, ईरान खिलाफ, स्वाय अरब कॉलोनियों के। यहां से निकले ना तो फिर जो लंच हुए अलहदगी में, फ्री लंच हुए, वो ट्रंप बताएगा, क्योंकि ट्रंप आपको पता है पेट का होला है। वो बताएगा लोगों को कि क्या क्या वादे हुए, क्या क्या वादे वईद हुए। बहरहाल सोशल मीडिया पे एक मशवरा आपके साथ शेयर करता हूं, गैस भी बंद है, बिजली भी नहीं है, रात के वक्त दबाकर गोभी खाएं, उसमें अदरक न डालें, दबाकर गोभी खाएं और गैस में खुद कफील हो जाएं। ये ट्विटर पे एक मशवरा था, मैंने कहा अपने मोजिज व्यूअर के साथ इसको साझा करूंगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।